Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. So, let do today date is 1st September 2021 and I am teaching you chapter number 8. Name of the chapter, Our Clothes. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video the topic which I explained you, that is furnishing of the fabric, how we color the clothes. Okay, after that we discuss care of our clothes, how can we take care of our clothes, and then I explained you about storage also. Only little more explanation is left in this topic that I give you just now. Okay, so to keep the silk and woolen clothes safe, then what we do, student? So what are the things to save? Okay, so student, how we can protect woolen and silk clothes? Woolen and silk clothes. So student, to keep them safe, so what things we kept inside the clothes? That is the dried neem. ओके, स्पेशली अब तो न्यू टाइम में और भी चीजें आ गई, लेकिन ओल्ड टाइम में लोग, क्योंकि वुलन क्लोथ ऐसे क्लोथ होते थे, सिल्क का क्लोथ ऐसा बेटा आप डेली नहीं पहन सकते. ठीक है, आप डेली जैसे हम डे टू डे डेली हम जो क्लोथ्स वेयर करते हैं, तो जो क्लोथ्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, तो ऑल द टाइम वी कैन नॉट वेयर दिस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. इन्हें हमें ज़्यादा बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है. तो सिल्क के क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स हम लोग डेली तो पहनते नहीं. वुलन क्लोथ्स वी वेयर इन द विंटर सीजन एंड आफ्टर दैट वी केप्ट इट इन आवर अलमीरा. सो व्हेन यू केप्ट दिस क्लोथ्स, सो ये इन क्लोथ्स को रैट्स भी काट देते हैं अगर प्रॉपर्ली आप लोग ना रखो, या इंसेक्ट्स भी इन्हें खराब कर सकते हैं. तो व्हाट आर द things the people kept inside the clothes so that they are safe? So that is the dry neem leaves. Dry neem leaves, boric acid powder, boric acid powder एंड नेफ्थलीन बॉल्स. ये वाइट कलर की आती है बेटा नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको हम लोग कपड़ों के अंदर डाल देते हैं. इसकी स्मेल बहुत अजीब होती है. ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड. So these are kept inside the clothes. इसको क्लोथ्स के बीच बीच में डाल के रख दिया जाता है. ठीक है, so that they are safe from the insects. Now, so student, today we have completed this chapter. Now let's start with let's discuss things to remember. These are the important points, and if you are able to understand this point, it means all the concept of the chapter are clear. So first is the things to remember. Clothes cover our body and protect us from heat, dust, insects, rain and cold. This is the first topic which I have covered in my video, that why we need a cloth, because clothes protect us from heat, cold, ठीक है, rain and even through the insects also.
Is it clear? And from dust also. So that is the reason we need a clothes. Second point is given, we wear different clothes according to the changing season and profession. So this thing also we have discussed. Due to different season we wear different types of a clothes. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन होती है तो रेन कोट गम बूट्स भी हम लोग यूज करते हैं. समर के समय वी वेयर लाइट कलर ऑफ ए क्लोथ्स सो डैट दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को. इज इट क्लियर? एंड इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स बिकॉज वी हैव टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम द cold air. So in the winter we wear woolen clothes. So yes, this is true. According to different season we wear different types of clothes and we also wear clothes according to the profession. ठीक है, आपके मैक्सिमम बच्चे आप लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो. देखो आर्मी के एक ड्रेस कोड है. ठीक है, इसी तरह जो नेवी में काम करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं, सो दे ऑल हैव सम ड्रेस कोड्स. तो बाई सीइंग और इवन those who are working in the police also, so by seeing their clothes, ठीक है, जैसे if any person is a doctor तो आप उसको white कलर का आप कोट देखते होगे. ठीक है, तो that is the reason by seeing these clothes we can also guess that person is in which profession. हम clothes को देख के भी ये पता लगा सकते हैं वो person किस profession में है. ठीक है, is it clear? जैसे तो दैट इज नेक्स्ट है, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल. ठीक है, नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल, एक तो क्लोथ्स को मटेरियल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. फिर एनिमल से भी मिलता है, सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है, वुल वी आर गेटिंग फ्रॉम द शिप एंड कॉटन वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट. एंड अनदर जो कि सिंथेटिक फाइबर है, दिस इज मेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल. ठीक है, सो क्लोथ इज मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स बोथ. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर. देखो बेटा, थिंग्स टू रिमेंबर जरूर पढ़ा करो. आप पूरा चैप्टर पढ़ ले तो ये सिर्फ 4-5 पॉइंट्स होते हैं. आप सोचते हो कि अरे पूरा पढ़ा है तो इसे क्या पढ़ें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू द रीडिंग ऑफ दिस पॉइंट्स ना एंड ऑल द पॉइंट्स यू आर एबल टू एक्सप्लेन बाय योर ओन, इसका मतलब पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्लियर हो गए. अगर आप नहीं अपने ओन आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इट मीन्स समथिंग you are unable to understand. That thing you can ask in online EVS class also. Next point is spinning, weaving, dyeing, printing and stitching are the stages involved in making clothes. Yes, this is absolutely right. First is the spinning. ठीक है, क्योंकि फाइबर पहले जो थ्रेड है, थ्रेड की हम लोग क्या करते हैं, स्पिन करते हैं. तो सबसे पहले स्पिनिंग और वीविंग क्या आता है, थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके हम लोग उससे क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं. ये बाई हैंड भी होता है, बड़ी बड़ी मशीनों लूम्स में भी होता है. इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स जो हैं, जो बहुत सी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स मीन्स द प्लेसेस इंडस्ट्रीज वेयर द क्लोथ इज फॉर्म्ड, उसको बोलते हैं. ठीक है, सो उसके बाद सब जब क्लोथ्स तैयार हो जाता है तो डाइंग करते हैं. डाइंग मतलब होता है वी डिफरेंट कलर्स. ठीक है, आपके क्लोथ्स, आपके पर्सनल क्लोथ्स जो आप घर में वेयर करते होगे, स्कूल के वेयर करते होगे, तो यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट इन द क्लोथ्स. सो डाइंग होता है. उसके बाद स्टिचिंग है. दीज आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेकिंग क्लोथ्स. एक स्टेज इसमें कम दी है, इससे पहले प्रिंटिंग भी होती है, फिनिशिंग भी होता है, फाइनली देखने की क्लोथ सही है कि नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ टू मेक देम लास्ट लॉन्गर. ठीक है, आप अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. ठीक है, आप अपनी क्लोथ्स की केयर नहीं करोगे तो वो बहुत जल्दी आपके कपड़े खराब हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपके घर में बहुत से अनवांटेड विजिटर भी हैं, रैट्स हैं. ये भी आपके क्लोथ्स को आपने प्रॉपर जगह नहीं रखा है, अलमीरा में नहीं रखा है, तो मे बी समटाइम दे कट योर क्लोथ्स आल्सो, न्यू क्लोथ्स आल्सो. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर क्लोथ्स. Now last is clothes should be stored carefully to keep away from insects. ये ऑलरेडी मैंने बताया कि इंसेक्ट से क्लोथ्स को बचाने के लिए, क्योंकि कैसे क्लोथ्स होते हैं, सिल्क और वुलन क्लोथ्स वी वेयर इन द विंटर सीजन एंड आफ्टर दैट वी केप्ट दिस क्लोथ्स इनटू द अलमीरा. सो वी शुड पुट नीम लीव्स, ड्राई नीम लीव्स, और यू कैन पुट बोरिक एसिड powder or their white balls that is known as naphthalene balls.
So you can kept these things inside the clothes so that they are protected from the insects. ठीक है. Last is given first step how we are making the clothes. Different steps are given. ठीक है. First it is given fiber. ठीक है, जैसे आपको कॉटन फाइबर है, सिल्क, ये आफ्टर दैट आप सेकेंड स्टेप क्या करते हो, स्पिनिंग ऑफ फाइबर. ठीक है, सबसे पहले आपने कॉटन प्लांट से, जैसे कॉटन पे डिस्कस कर लेते हैं, कॉटन प्लांट से कॉटन मिल गया तो ये हो गया फाइबर. अब इसको स्पिन करते हैं. स्पिन करके हम क्या तैयार करते हैं बेटा, व्हाट वी डू बाय स्पिनिंग. स्पिनिंग से हम लोग थ्रेड बनाते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप है वेविंग ऑफ ए थ्रेड. अब इन थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके या तो बाई हैंड मेथड से या तो मशीन्स मेथड से अब हम लोग इनसे क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, फैब्रिक. फैब्रिक किसको बोलते हैं, क्लोथ को. ठीक है, फैब्रिक किसको बोलते हैं, क्लोथ को. जब फैब्रिक बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है डाई. डिफरेंट कलर डाई हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, और डाई कर लिया क्लोथ्स को. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिंटिंग. आप अपने क्लोथ्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते होगे, अलग अलग प्रिंट्स देखते होगे. जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं और डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं, ब्लैक भी है, वाइट है, ब्राउन, इस टाइप के. तो ये डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कलर्स आप स्पेशली आपको बहुत अच्छे डिज़ाइंस देखने हैं तो आप अपनी मम्मी लोग की साड़ी में देखा करो. ठीक है. सो अब उसके बाद प्रिंटिंग के बाद होती है फिनिशिंग. फाइनली चेक करते हैं कि क्लोथ स्मूथ है, व्रिंकल तो नहीं है, वाटर प्रूफ है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं. और नेक्स्ट इज द टेलरिंग. ठीक है. आफ्टर दैट क्लोथ हम किसको देते हैं, टेलर को. टेलर ही कपड़े स्टिच करता है. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस हाउ वी मेक द क्लोथ्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप. नाउ after completing the explanation of the chapter, let the students start with the book exercises of the chapter. First question is pick the correct answer. Pick the correct answer. So question number 1, we wear dark color clothes. We wear dark color clothes in the dash season. Now the options are rainy, B autumn, C winter, and D is the summer. Okay, so we wear dark color clothes in which season? Rainy season? No. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. रेनी सीजन में देखो जब रेन होती है तो वेदर थोड़ा कूल भी हो जाता है, और नहीं तो फिर धूप होती है तो बहुत गर्मी लगती है. स्पेशली नॉर्दर्न एरिया, प्लेन्स एरिया में तो ऐसा ही होता है. रेन होती है, अगले दिन धूप और ज़्यादा गर्मी लगती है. हाँ, रेन कंटिन्यूस 2-3 दिन हो तो वेदर क्या होता है, कूल होता है. ठीक है. So rainy season not right answer. Autumn season is also not a right answer. ठीक है, तो autumn भी right answer नहीं है. ठीक है. So अब ये क्या है, autumn season क्या है, ये सीजन किसके पहले आता है, विंटर के. बिगिनिंग ऑफ द विंटर बताता है ये आपका ऑटम सीजन. ठीक है, तो दैट इज द ऑटम सीजन. ठीक है. और फिर समर है. समर में तो डार्क कलर क्लोथ्स पहनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं समर में, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट, उसमें हमें गर्मी कम लगती है. सो इन विंटर सीजन राइट आंसर इज विंटर. विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स पहनोगे तो वो क्या करेंगे, जब सन की लाइट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. लाइट कलर क्लोथ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन
जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। विंटर में ठंड होती है तो हमें अपनी बॉडी को कैसा रखना है, वार्म रखना है, तो हम ऐसे क्लोथ्स पहनेंगे जो डार्क कलर के हो, जिससे हमारी बॉडी क्या रहे बेटा, वार्म रहे। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड, which of the following which of the following is not a synthetic fiber? Not a synthetic fiber. Option number A, silk. Option number B, lycra. Option number C, nylon. Option number D, rayon. So what is the right answer? Which of the following is not a synthetic fiber? That is a silk, because this is we are getting from the animal. ठीक है, ये क्या एनिमल से मिल रहा है। उसके बाद लाइक्रा है, नाइलॉन है, रेयॉन है। दीज ऑल आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, दीज आर मैन मेड फाइबर, दैट इज इट मीन्स दे दीज ऑल थ्री कैटेगरीज दैट दे आर सिंथेटिक फाइबर। ये कैसे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। और सिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम ए सिल्क वॉर्म। ठीक है, दैट इज द रीजन दिस इज नॉट ए मैन मेड। ठीक है, कोकून से मिलता है ना सिल्क, सिल्क वॉर्म जब कोकून फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग हॉट वाटर में डाल देते हैं। सिल्क वॉर्म को निकलने नहीं देते हैं कोकून से, सिल्क वॉर्म को हम लोग मार देते हैं। हम ह्यूमन बींग्स बहुत ऐसे ही हैं। तो सिल्क इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, हाउ इज द ट्विस्टिंग द फाइबर, ट्विस्टिंग द फाइबर, ट्विस्टिंग द फाइबर टू मेक थ्रेड, टू मेक ए थ्रेड और yarn is called it dash. Option number A, weaving. B, dyeing. C, spinning. D is printing. Okay, so next question is, so twisting the fiber to make thread or yarn is called it. ठीक है, अब जो फाइबर होती है, या तो वो कॉटन की फाइबर हो, या तो एनिमल से ली वूल हो, या सिल्क हो, तो उससे उस फाइबर से सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, थ्रेड बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट इज गिवन वेविंग। नो, दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग आंसर। वेविंग थ्रेड के साथ होती है, यहाँ पे थ्रेड बनाना है। ठीक है, वेविंग में तो ऑलरेडी थ्रेड होता है और थ्रेड से हम क्लोथ बना रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट आंसर। डाइंग, डाइंग इज व्हेन द क्लोथ इज मेड, जब क्लोथ बन जाता है तो हम उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं। ठीक है, सो दैट इज डाइंग। सो एंड प्रिंटिंग, दिस इज आल्सो नॉट राइट आंसर, क्योंकि जब क्लोथ पे कोई कलर की डाई आप लोग कर देते हो तो उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न या डिजाइंस बनाते हो, दैट इज नोन एज प्रिंटिंग। सो व्हाट इज द राइट आंसर, स्पिनिंग। स्पिनिंग मेथड से हम लोग थ्रेड बनाते हैं। पहले स्पिनिंग इंडिया में किस पे करते थे, चरखा पे। फिर उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया होगा जेनी आ गई, शायद स्पिनिंग जेनी, जिसमें 8 थ्रेड एट ए टाइम बनने लगे। और उसके बाद तो अब जो
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेड एट ए टाइम बनाती हैं, जिससे ये वर्क को क्या है, क्लोथ्स बनाने का बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। सो आंसर इज स्पिनिंग। Next, once washed white color should be once washed one washed white clothes should be soaked in dash. Option A, indigo powder. Option B, detergent. Option C, fabric water. D, red chili powder. सो वंस वॉश्ड, देखो बेटा यहाँ पे हमने वॉशिंग कर ली है क्लोथ की, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू विद द क्लोथ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। वंस वॉश इट मींस वी हैव ऑलरेडी वॉश द क्लोथ विद द डिटर्जेंट, ठीक है, किसी ना किसी डिटर्जेंट से हमने ऑलरेडी क्लोथ को वॉश कर लिया, तो डिटर्जेंट इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, इज नॉट राइट आंसर। फैब्रिक वाटर, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। रेड चिली पाउडर, जो लाल मिर्चा होता है उसका पाउडर डालना है, ये तो एकदम ही रॉन्ग आंसर है। सो व्हाट इज द इंडिगो पाउडर, ठीक है, इंडिगो पाउडर, क्योंकि व्हाइट कलर्स में क्या होता है ना बेटा, अगर आप व्हाइट कलर के क्लोथ्स को कंटिन्यूअस वॉश करते रहो, वॉश आफ्टर सम टाइम यू विल सी देयर कलर चेंज, वो येलोइश टाइप के होने लगते हैं, दैट इज द रीजन वी पुट इंडिगो पाउडर, ठीक है, सो दैट द कलर इज मेंटेन। राइट आंसर इज इंडिगो पाउडर, जिसे हम लोग हिंदी में नील भी बोलते हैं, ब्लू कलर। इस पाउडर को आप किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, मिक्स करोगे, तो ये बिल्कुल ब्लू कलर होता है। आफ्टर दैट फिर हम इससे जो व्हाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, वी पुट दैट क्लोथ्स इन दैट बकेट इन विच वी मिक्स द इंडिगो पाउडर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, the special treatment given to the fifth one, the special treatment given to the fabric, given to the special treatment given to the fabric can make it, option A, waterproof, option B, wrinkle free, C, fluffy, D, all of these. So the special treatment when the cloth is ready, उसके बाद उसकी कलरिंग भी हो गई, उसके ऊपर प्रिंटिंग भी हो गई, तो फाइनली जो हम लोग टच देते हैं क्लोथ्स का,
तो उसमें वाटर प्रूफ भी देखते हैं। ऑल दिस थिंग विच आर व्रिंकल फ्री, कहीं से मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। फ्लफी मीन्स स्मूथ होना चाहिए। आप कभी भी न्यू क्लोथ्स बाई करते हो तो देखा करो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, धो धो के उसके रोए निकलने लगते हैं बहुत ज़्यादा वॉश करने से, ठीक है। सो when you buy a new cloth na and when you touch that cloth na its surface is very smooth. So all these points which are given, that all the points are right: waterproof, wrinkle free and fluffy. Okay, fluffy means the surface of the cloth is smooth. Now we will start fill in the blanks of the chapter. Fill in the blanks. Question number B. First is we use dash, we use dash to protect woolen clothes. So for this you can write any one answer out of 3 answers are given. People kept dry neem leaves also. Okay, people kept neem leaves also, boric powder also, and naphthalene balls also. So you can write, you have 3 options, you can write any one. Okay, naphthalene ball. I have written in this blank, the answer is naphthalene balls. But if you write in the exam dry neem leaves, that is also right. If you write in the exam boric acid powder, that is also right. Okay, question number 2. Dash is obtained from shape. Dash is obtained from shape. So what is obtained from shape? Wool. Wool is obtained from shape. During the process of dash cloth is given different colors. So in which step student we give different color to the fabric. अब हमने क्लोथ बना लिया, अब उस क्लोथ को हम लोग को डिफरेंट कलर्स देने हैं. तो व्हाट वी डू, व्हाट इज दैट इज डाइंग. हम लोग क्या करते हैं, क्लोथ्स को डाई करते हैं. हॉट बड़े से वेसल में हॉट वाटर में कलर मिक्स कर देते हैं, देन वी पुट द क्लोथ्स इन दैट. इज इट क्लियर? Next is artificial fibers are dash than natural fibers. So what is the answer? Artificial fibers means जो man made fibers हैं.
तो वो नेचुरल फाइबर के कंपेयर में क्या होते हैं बेटा, वो चीपर होते हैं। कॉटन के कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, सिल्क से सिल्कवॉर्म बना रहे हो, वुल से वुलन क्लोथ बना रहे हो, ये कपड़े बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, वुलन क्लोथ। सो आर्टिफिशियल फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। चीपर्स मतलब हुआ उनसे इनकी कॉस्ट क्या होती है, सस्ती पड़ती है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।